Hello everyone, my name is Piyush Kumar and today we are going to discuss another important term from ethics syllabus, that is attitude. कि attitude क्या है? Attitude is your predisposition to act or behave in a particular manner towards an attitudinal object. Attitudinal object क्या हो सकता है? It may be situation, it may be an idea, it may be a material, or it may be a person. It is the way, it is your tendency to behave in a certain manner. It is your predisposition to act. आपको एक सिचुएशन दी जाए, उससे आप रिएक्ट कैसे करोगे, ठीक है? प्रीडिस्पोजिशन क्या है, किस तरह से आप रिएक्ट करते हैं, दैट इज योर एटीट्यूड. तो एटीट्यूड के जो डेफिनेशन में है, दिस कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज प्रीडिस्पोजिशन टू एक्ट and another is towards an attitudinal object, because attitude is a relational term. Attitude किसी के context में define होता है. So to give you an example, I have taken Virat Kohli and MS Dhoni's example. Now Virat Kohli has aggressive attitude. So whenever he is presented to a situation, he react in an aggressive manner. On the other hand, the attitude of MS Dhoni is of calmness. MS Dhoni के सामने कोई stressful situation आती है तो वो एक calm attitude से उसको respond करते हैं. So both leaders differ in their predisposition to act in a certain manner. So I hope आपको समझ में आ गया कि attitude is a predisposition और कैसे ये person to person vary कर सकता है. Another important keyword in your ethics syllabus is moral attitude. ठीक है, एक टाइप है एटीट्यूड का, moral attitude. Moral attitude क्या है? It is your tendency. These are attitude that is based on the moral conviction. Basically, it is about those predisposition that has underlying theme of rightness or wrongness, that has good or bad. ठीक है, कोई भी moral attitude, कोई भी ऐसा attitude जिसमें underlying theme about rightness and wrongness है, जिसमें judgment आ रहा है कि ये सही नहीं है या ये गलत है, that is moral attitude. हर attitude moral attitude नहीं होता, ठीक है? Not all attitude are concerned with morality. For example, I might like gobi, I might like paneer. मेरा positive attitude हो सकता है towards gobi, towards paneer, towards black, towards blue, towards color. Now all these positive attitude towards these attitudinal subjects are amoral attitude. Amoral मतलब इनका राइटनेस और रॉन्गनेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? आप ये कह नहीं सकते कि मेरा पनीर खाना गलत है या मेरा पनीर को लाइक करना गलत है. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. सो टू गिव यू द एग्जांपल, दोज एटीट्यूड जिनमें राइटनेस एंड रॉन्गनेस का कोनोटेशन आता है, दोज आर मॉरल एटीट्यूड. वी टेक द एग्जांपल ऑफ गांधी जी. गांधी जी हैड नॉन वॉयलेंट एटीट्यूड, ठीक है? तो उनमें राइटनेस और रॉन्गनेस का जो जजमेंट था वो ऐसे था, किसी भी वॉयलेंट एक्ट को वो गलत मानते थे. तो ही हैड दिस टेंडेंसी, प्रीडिस्पोजिशन टू एक्ट इन ए नॉन वॉयलेंट मैटर. तो उनका नॉन वॉयलेंट एटीट्यूड था. ऑन द अदर हैंड भीष्म पितामह, उनका लॉयल्टी का एटीट्यूड था. हस्तिनापुर सिंहासन के प्रति उनकी लॉयल्टी बहुत भीष्म थी, ठीक है? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉयल एटीट्यूड. अगर कोई भी सिंहासन के खिलाफ काम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो उसको वो गलत मानते थे, ठीक है? राइटनेस और रॉन्गनेस का कोनोटेशन आना चाहिए मॉरल एटीट्यूड में. सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ही हैज ऑनेस्ट एटीट्यूड, ठीक है? ऑनेस्टी के खिलाफ जो चीजें जाती थी उनको वो गलत मानते थे. सही और गलत का जो ये डिफरेंस है, दैट इज मॉरल एटीट्यूड, ऑनेस्टी का एटीट्यूड. सिमिलरली मदर टेरेसा हैड कंपैशनेट एटीट्यूड, ठीक है? सो शी वांटेड ना, जो इन्होंने वीकर सेक्शन के खिलाफ जो साथ से जो काम किया, उनका पेन को एलिवेट करने का जो काम किया, दैट इज बिकॉज ऑफ कंपैशनेट एटीट्यूड. किसी को पेन में देख के उनका प्रीडिस्पोजिशन था, इट वाज टू हेल्प देम. सो शी हैड कंपैशनेट एटीट्यूड. सो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ मॉरल एटीट्यूड. Another syllabus term in your ethics syllabus is political attitude. Political attitude क्या है? It is your expression of favor or disfavor towards political ideologies, political parties, politicians और political culture. Different elements जिनमें political connotation हैं, उनके प्रति आपका रवैया कैसा है, आपका attitude कैसा, आपका predisposition कैसा है, all that is part of political attitude. You may be a moderate, you may be conservative, you may be reactionary, or you may have liberal or radical attitude. Radical attitude वाले क्या आते हैं? Total revolution, सब कुछ बदल के रख देंगे, ठीक है? जो वो चेंज करना चाहते हैं, ये होते हैं radical attitude. Liberal political attitude जिनका होता है वो धीरे धीरे स्लो चेंजेस, इंक्रीमेंटल चेंजेस की बात करते हैं, धीरे धीरे हम चेंजेस करेंगे. कंजर्वेटिव एटीट्यूड, ठीक है, ये रजिस्ट करते हैं चेंजेस को कि चेंज नहीं होना चाहिए, हम सही हैं, अभी हैं, ठीक है? दे प्रेफर स्टेटस कोस्ट. देन रिएक्शनरी, ये कहते हैं पुराना जो समय था वो बेहतर था, वहीं पे चलते हैं वापस. सो दे हैव रिएक्शनरी एटीट्यूड. सिमिलरली पॉलिटिकल आइडियाज में लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंट्रिस्ट, दीज आर ऑल्सो पॉलिटिकल एटीट्यूड, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि आप सेंटर के किस राइट में हैं, लेफ्ट में हैं.
आप रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं तो परहैप्स यू हैव लेफ्टिस्ट एटीट्यूड, थोड़ा सोशलिस्टिक एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड है आपका, ठीक है। सो आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल एटीट्यूड के डिफरेंट डिफरेंट कनोटेशंस क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स क्या हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, रिएक्शनरी एटीट्यूड। आईसिस वांटेड टू क्रिएट दिस कलीफेट, ठीक है, बेस्ड ऑन सम देयर ओन ट्रेडिशनल वर्जन ऑफ कलीफेट, कि वो कैसे उसको रन करना चाहेंगे। So this is reactionary attitude. This is the example of खाप पंचायत। खाप पंचायत has conservative attitude. They do not want to change. लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए। All these are example of conservative attitude. Similarly, LGBT communities, इनके जो ये जो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, they have liberal attitude. They want to change. They want some gradual change कि we should also have, we should also be recognized and we should also be given rights, है ना, we should also be treated with human dignity. So they have liberal attitude. And भूदान मूवमेंट, सो आचार्य विनोबा भावे, सो भूदान मूवमेंट के बारे में सुना है आपने कि लोगों ने अपनी लैंड दान की थी जो ज़्यादा थी उनके पास। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ही हैज सोशलिस्टिक एटीट्यूड, सोशलिस्टिक पॉलिटिकल एटीट्यूड। सो अब आपको एटीट्यूड समझ में आ गया, पॉलिटिकल एटीट्यूड समझ में आ गया, मॉरल एटीट्यूड समझ में आ गया, डिफरेंट एग्जांपल समझ में आ गए, ठीक है। सो आई होप अब आगे से आप जब भी एटीट्यूड शब्द का यूज करेंगे, एटीट्यूड वर्ड का यूज करेंगे, आप स्पेसिफिक यूज करेंगे कि कहाँ पे पॉलिटिकल एटीट्यूड लगाना है, कहाँ पे मॉरल एटीट्यूड लगाना है, कहाँ पे एटीट्यूड का कौन सा नाम देना है। सो दैट विल मेक योर आंसर मोर स्पेसिफिक एंड विल टेल द एग्जामिनर दैट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द थिंग। सो आई होप अब आप एटीट्यूड में कोई भी आंसर लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें, सारे एग्जाम्पल आपके आंसर्स में आएंगी एंड दैट विल हेल्प यू in fetching great marks. Thank you so much.